So, good evening, everyone, and we will start today. We will continue with what we were doing in the previous class. In the previous class, I'd explained you how to determine the quadrant, and also I'd explained you how to, what is a shortcut to determine the quadrant. Yes or no? Tell me. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay. Then I'd explained you that how to express any angle in the form. How to express any angle in the form n into 90 degree plus minus phi. Like theta represents any angle, same way phi represents any angle here, nothing else. So don't get tense that phi ये क्या है, what मतलब अजीब सा चीज phi हम कुछ ऐसा कुछ चीज है, मतलब कुछ इसका मतलब ये सिंबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, that's all. Now tell me everyone that this phi जो लास्ट डे मैंने बताया था, tell me कि ये phi का रेंज क्या, मतलब phi क्या होना चाहिए बताओ. Less than 90 degree. Less than 90 degree होना चाहिए. 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, less than 90 डिग्री, जो कि तुम लोगों ने बोला. करेक्ट. ये n क्या होना चाहिए बताओ? Natural number. Very good. n belongs to a natural number. मतलब कोई fraction नहीं हो सकता. ठीक है? तो with this, let's do few questions so that the things are more clear to you now. And let us just with 2-3 examples, let us summarize what we had done last year. You remember that in the last class I had explained you that suppose you have got 26 into 90, let's say plus 50 degree. You can determine quadrant in just few seconds. And what was that method? Can any one of you, can you just tell me your own words? Tell me, क्या था वो method? We'll divide it and then We'll get the remainder. No. Divide it means divide what? We will divide four, n sir. by 4. You will divide n, which is 26, by 4, and whatever remainder comes, We will add 1. we will add 1 to it, which will give you the quadrant of that angle. All right, everyone? And this works when you have plus 5, not minus 5. You remember that? This will work. This division part will work if the value of n is 4 or more. Because if it is less than 4, we find that we just have to add 1 to the value of n. You remember that? तो पहले एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूं. तो 26 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा बताओ? So 2. और अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा मिल जाएगा? 3. मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर? और यहाँ जो मैंने बताया भी था लास्ट डे कि 2 into 90 प्लस अगर कुछ भी हो तो वहां पे तो कोई चिंता ही नहीं है, 2 है तो क्वाड्रेंट 3 हो जाएगा. तो ये सब चीज लास्ट डे एकदम क्लियर था, मतलब पूरा मैंने क्लास में यही चीज समझाया था. तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. नाउ सी नेक्स्ट. Now let us take the first question of number 9. We are starting now number 9 because till 8 everything is clear. तो 9 का मैं number 1 एक बार start कर. So the first question is cos of 840 degree. And we have to determine the value of this cos 840 degree. Now try to take out your formula copy where you had written that how to find out the value of trigonometric functions whose angle is greater than 90 degree. So you remember that the first step was to express this angle in the form n into 90 plus minus 5. And you also remember this part कि अगर मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना into 90 plus क्या करने से 840 आएगा. Do you remember that rule which I had explained you last day कि हम लोग express करने का भी मैंने बताया था तरीका. Can anyone repeat this line? What I am saying, are you understanding? जैसे कि तुमको अगर 840 डिग्री को एक्सप्रेस करना है n into 90 प्लस माइनस 5 में और तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि कितना into 90 प्लस क्या करने से 840 आएगा, तो मैंने उसका भी एक प्रोसेस बताया था. 840 by 90 से डिवाइड करेंगे. हम लोग 840 को 90 से डिवाइड करेंगे और हम लोग देख रहे हैं ये सारे डिस्कशन से अभी तक जो भी अभी उन्होंने किया, ये सारे डिस्कशन से लास्ट डे का चीज क्लियर हो गया कि ये सभी चीज उन्होंने किया था. ये चीज लास्ट डे किया था और कुछ नहीं. तो हम इसको 90 से डिवाइड करेंगे. सो वी आर फाइंडिंग दैट वी विल गेट हाउ मच? So 9. तो कुछ इसमें कुछ 99 टाइम्स
इसमें डायरेक्ट 9 टाइम्स ही हो जा रहा है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें देख के पता चल रहा है कि 9 9 टीचर 810 and plus 30 is how much? 840. So we can write this as 9 into 90 degree plus 30 30 degree. All right. So check in your copy. The first step is express angle in the form n into 90 plus minus 5. अब quadrant वाला part. Second step अपनी कॉपी में नोट करो. Check the quadrant. Please check in your copy. Read everyone. पहला स्टेप है एक्सप्रेस करो एंगल को n into 90 plus minus 5 में. वो कर दिया मतलब. सेकेंड स्टेप है रीड कर रहा हूं मैं रीड कर रहा हूं, देखो अपने अपने कॉपी में वही से लिखा हुआ है. चेक द क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट को चेक करो. 840 किस क्वाड्रेंट में है वो चेक करो. अगर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द क्वाड्रेंट इज द होम क्वाड्रेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म होम क्वाड्रेंट? होम क्वाड्रेंट मींस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव. मतलब पहला क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का घर है, हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सब पॉजिटिव रह सकते हैं. पॉजिटिव रहेगा मतलब उसका वो घर है, सीधा सा बात. मतलब मैंने जो होम क्वाड्रेंट टर्म यूज किया है ये किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस पॉजिटिव होता है. मतलब पहला क्वाड्रेंट सारे फंक्शंस का होम क्वाड्रेंट है. बताओ तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका होम क्वाड्रेंट है? साइन एंड कोसेक. साइन एंड कोसेक का. थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? टैन एंड cot. फोर्थ कॉस एंड Second cos. राइट. अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम 9 को शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हैं. तो 9 को 4 से डिवाइड करें 2. वेरी सिंपल. 2 सेकंड क्वाड्रेंट. अब बताओ मुझे सेकंड क्वाड्रेंट किसका होम क्वाड्रेंट है? साइन और कोसेक का. मतलब ये कॉस उसमें अनजान है, मतलब कॉस उसमें फॉरेन सब्सटेंसेस से हम लोग समझ सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए. राइट. मतलब एकदम उसमें वो एक उसका क्वाड्रेंट नहीं, उसका घर नहीं. उसका घर नहीं मतलब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है? नेगेटिव साइन. क्या मल्टीप्लाई करना है? नेगेटिव साइन. नाउ फिर से एक बार नोट करना सबको ही, मुझे सॉल्व cos 840 को सॉल्व करने के लिए दिया गया. हम लोग को सॉल्व किसको करना है? cos 840 को. तो cos 840 किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में. पता है सबको को, मैंने स्टेप्स बता दिया. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव मल्टीप्लाई किया. इसलिए वहां लिखा है इफ द क्वाड्रेंट इज द होम क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई पॉजिटिव एल्स नेगेटिव. एल्स मतलब अगर वो उसका क्वाड्रेंट नहीं है तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करो. नहीं है क्वाड्रेंट उसका, है कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट cos का क्वाड्रेंट नहीं है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करें. अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं. थर्ड स्टेप में आने के पहले लास्ट डे भी मैंने ये चीज पूछा था तुम लोगों से कि देयर आर टोटल 6 फंक्शंस इन ट्रिग्नोमेट्री, आउट ऑफ व्हिच 2 फंक्शंस आर कंप्लीमेंट्री. कंप्लीमेंट्री मींस sin 30 का वैल्यू cos 60 के बराबर होता है, cos 40 का वैल्यू sin 50 के बराबर होता है. डू यू रिमेंबर दैट? मतलब sin cos कंप्लीमेंट्री है, tan cot कंप्लीमेंट्री है, sec cos कंप्लीमेंट्री. रीड द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में बताया ये जा रहा है कि अगर n यहाँ पे 9 है, अगर n ऑड होता है तो चेंज. देखो मैंने 2 जगह अंडरलाइन की है, ठीक है ना? देखो तो एक बार ऑड में चेंज वाला लाइन अंडरलाइन की, सॉरी ऑड अंडरलाइन की और चेंज अंडरलाइन की है, इवन अंडरलाइन की और सेम अंडरलाइन की है. किया है कि नहीं? मतलब ये अगर इवन होगा तो सेम रहेगा. सेम मतलब cos cos रहेगा, sin sin रहेगा. और अगर ये ऑड होता है ये n तो चेंज हो जाएगा. चेंज मतलब अगर cos होगा तो चेंज होके क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? देखो रीड करके बताओ. साइन. Sin मतलब it will change to its complementary. What is the meaning of complementary function? Complementary means complementary of cos is sin and sin का cos, vice versa. Tan का cot, cot का tan, sec का cosec, sec का cosec, cosec का sec. तो अब ये odd है. Odd है तो मैं चेंज कर दूं तो? चेंज करूं तो? Yes sir. Yes sir. Yes. तो अगर मैं चेंज करूं तो cos चेंज होके किस में आ जाएगा? साइन. Sin में. और साइन लिख दिया. और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को इग्नोर करके हम लोग फाई लिख देते हैं. I'll tell you the reason for this graphically later on, and for this I'm going to explain you few derivations. जो कि क्वाड्रेंट वाला पार्ट हमको पता है, बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं वापस से वो चीज समझाऊंगा. डोंट वरी. लास्ट में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके सब चीज को क्लियर करेंगे. डोंट वरी. तो सबसे पहला चीज 9 ऑड है तो cos में बदल दिया, cos को sin में बदल दिया, सॉरी, और लास्ट में 30 डिग्री लिख दिया. अब बताओ मुझे sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2. 1/2. तो आंसर इसका क्या है? 1/2. एक और एग्जांपल में लेता हूं यहां पे पहले. लेट अस टेक cos, लेट अस टेक tan, लेट्स टेक tan 350 डिग्री. ठीक है. अब मुझे दिख रहा है कि ये tan फंक्शन है और इसका एंगल 90 से बड़ा है. ये जो रूल है अपने लोग जो 3 स्टेप्स का बार-बार जो बात कर रहे हैं तभी काम आता है जब एंगल 90 से बड़ा होगा.
तो बताओ तो 315 को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ n into 90 के फॉर्म में, तो बताओ तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 3 into 90 plus 45. ओके चलो 3 into 90 लिखते हैं, 3 into 90 plus 45। और कोई ऑप्शन है? Sir, 4 into 90 minus 4 45. into 90 minus minus 45. यस वेरी गुड, 4 into 90 minus 45 भी ऑप्शन में है। लेकिन हमेशा प्लस वाला प्रेफर करेंगे, कोई शॉर्टकट काम आ जाएगा तो ये ज्यादा बेटर होता है इसलिए। नाउ 3 है लेस देन 4 है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा बताओ तो? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है बताओ? Sir, negative. नेगेटिव होता है। ये 3 ऑड है, ऑड है तो tan चेंज होगा या tan tan ही रहेगा? Sir, change हो जाएगा तो cot में. चेंज हो जाएगा कॉट में। कॉट में बदल जाएगा और लास्ट में 45 डिग्री लिख देगा, तो cot 45 डिग्री का आंसर 1 होता है, सो आंसर इज -1। इससे करो वही आंसर है, चेक कर लीजिए। 4 into 90 minus 45, 4/90 घूमो माइनस कर दो, मतलब उसके पहले वाले क्वाड्रेंट, मतलब वो लाइन के पहले वाला क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। ये इवन है तो tan tan ही रहेगा, और लास्ट में ये लिख दो 5 को सिर्फ। So do you find that the answer is same? You don't find that we are getting two different answers. We are getting the same answer. Definitely you'll get. All right. Let me give you one more example before you will copy these things. Let me give you one more example, and it is cos. Let's take sin 135 degree. तो बताओ तो इसको अगर मैं एक्सप्रेस करें वो n into 90 वाले फॉर्म में, तो क्या होगा ये? So Sir, 1 into 1 into 90 90 plus 45. Plus 45. 1/90 plus 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और ऑड है तो साइन cos में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द आंसर इज cos 45 डिग्री, व्हिच इज 1/2। Is this clear to everyone? Yes? यस सर। Sir, Now I first want- quadrant सबका home quadrant होगा ना? हाँ। So I hope the things are clear. Now I want everyone to copy the first example, जो कि 9 का 1 है, and these two examples. हरिए, copy down, then I'll tell you कि कौन सा summary करना है। So now everyone is going to solve right now. You'll use this concept and find out the value of sin 405 degree, cos 405 degree, and tan 405 degree. Everyone don't be in hurry. See, make sure that everyone, हमेशा जल्दीबाजी करने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस कम होता है। क्यों बता रहा हूँ? When you are starting anything, जल्दीबाजी कर रहे हैं, कंसेप्ट में मिस्टेक हो रहा है, एक बार में आंसर नहीं आ रहा है, so please make sure that don't be in hurry. दिमाग को ठंडा रख के आराम से सॉल्व करें। गिविंग यू टाइम। एवरीवन स्टार्ट। So everyone note down. So in the first question we have sin 4 into 90 plus 45 degree. 4 into 90 plus 45 degree means first quadrant, जिसमें सब कुछ भी पॉजिटिव होता है, even है तो sin, and the answer is 1/√2. So similarly, this answer is also 1/√2. And what is this answer? What is the answer? 1 ये काफी सिंपल है। Okay, 4 into 90 plus 45 और 4 into 90 plus 45 अगर तुम शॉर्टकट यूज करो तो 4 divided by 4, रिमाइंडर इज 0, 0 plus 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और उसके बाद इवन है तो tan tan रहेगा, tan 45 डिग्री इज आंसर, व्हिच इज। बट आई वांट एवरीवन टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं दे रहा हूं, ध्यान देने का सब कोई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is sin 420 degree, cos 420 degree, and tan 400, नहीं ये दो ही खत्म कर, ये दो, sin 420 cos 420, do first set. So the answer of the first question is √3/2, and the answer of the second question is 1/2. All right. Now let me take few more questions, but before taking few more questions, let me give you formula first. Okay? Let me give you formula. Everyone, copy down this formula. जो मैं दे, sin of minus theta is minus sin theta. Cos of minus theta is equal to cos theta. Tan of minus theta is minus tan theta. Cosec of minus theta is minus cosec theta.
then we have cot of minus theta, which is minus cot theta, and last sec of minus theta is sec. Now see, there are two things whose derivation will be done after we complete this PDF, I mean this trigonometric functions, right? What are those two things? About quadrant part. The second thing, the derivation of this formula. Right now you will just think that cos and sec, these two are exceptional case. What is the exceptional case here? That cos of minus theta is equal to cos theta and sec of minus theta equal to sec theta. बाकी सारे functions में ये जो नेगेटिव एंगल है वो आगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है. बट प्लीज डोंट रीड दिस. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इतने बोलने के बावजूद भी वो लोग कैसे रीड करते पता है? sin into minus theta equal to minus sin theta. They will read this way. cos into minus theta. ये cos into नहीं है, cos of है, वो एंगल है, वो अलग अलग चीज नहीं है. ठीक है, तो याद रखना ये ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे तो ऐसा हो जाता है. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो ये भी तुम्हारा माइनस cos थीटा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता. और ये मैंने फर्स्ट डे बताया था कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल के साथ कभी भी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होता है. ये पूरा एक चीज होता है मैथमेटिक्स में. ठीक है, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें साइन थीटा का एक मतलब होता है. साइन और थीटा अलग अलग चीजें नहीं होता है. ये दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन थीटा फॉर्म नहीं होता है. साइन थीटा एक ही चीज होता है, एक यूनिट होता है, मैथमेटिकल यूनिट. तो एक बार फटाफट इन सारे चीजों को कॉपी करना है फ्रॉम 1 to 6. एंड प्लीज नोट डाउन द बेस्ट वे टू लर्न इज cos of minus theta and sec of minus theta. cos and sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो cos और sec इन दोनों में नेगेटिव एंगल्स एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी सब में आगे मल्टीपल फॉर्म हो जाएगा. Derivation later on. Copy it down first. Take one question. Okay, everyone note down. Let me take question number 3. 9 का number 3. ध्यान देना. सबसे पहला चीज tan of minus 120 degree. ध्यान देना सब. Okay. The question is tan of minus 120 degree. तो एक बात बताओ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किया वहां पे एंगल कभी भी नेगेटिव था नहीं. तो नेगेटिव एंगल हो अगर होगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला दिया है. दीस आर द 6 फॉर्मूलास. कॉपी डाउन इन फॉर्मूला कॉपी. सीक्वेंस क्या मेंटेन करेगा? 6. ठीक है, या 7 जो भी है तुम लोग देख लेना. आई थिंक इट इज 7. सीक्वेंस 7 है. तो जो भी है तुम लोग देख लेना अपनी कॉपी में. अब देखो इसका आंसर, इसको कैसे हम कैलकुलेट करें. सबसे पहले tan of minus theta is how much? Minus tan theta. Okay, it is always advised to always write down the formula which you are using in that particular line. If you are using any formula, you must write down that formula. दो फायदा होता है, अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा और जब तुम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो तुमको समझ में आएगा कि तुमने क्या किया. tan फंक्शन है और एंगल मोर देन 90 है, तो मोर देन 90 होगा तो हम लोग को 3 स्टेप में फॉलो करना है, सॉल्व करना है सबको. स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? इसको मुझे एक्सप्रेस करना है n into 90 plus minus 5. तो बताओ तुम ही लोग कि 120 को क्या लिखे बताओ. So 1 into 90 plus 30 degree. वेरी सिंपल. 1 into 90 डिग्री 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री में कितना ऐड करने से 120 होगा? इट इज 30 डिग्री. 30. ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा था मुझे 2 into 90. 2 into 90 180 हो जाता है और 180 में क्या सब्ट्रैक्ट करने से 120 आएगा? 60 डिग्री. तो ये दोनों करेक्ट. नेक्स्ट, अब ध्यान से नोट करना सबको. पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. हम क्वाड्रेंट वाला पार्ट चेक करेंगे. क्वाड्रेंट वाला पार्ट चेक करने के लिए हमको देखना पड़ेगा 1 into 90 plus 30 lies in which quadrant? It lies in second quadrant. Second quadrant में tan फंक्शन क्या होता है? Negative. यहाँ पे हाँ ठीक है. अब देखो यहाँ पे गलती क्या होगा बहुत लोगों से, सब कोई ऐसा सोच रहा होगा कि नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है इस सम में. इस सम में tan के आगे तो नेगेटिव है ही, तो अब नेगेटिव होता है तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट ये गलत कंसेप्ट है. ठीक है, अगर बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज ये तो tan फंक्शन के आगे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई है ना. अभी हम लोग सॉल्व किसको कर रहे हैं? हम लोग सॉल्व इस पार्ट को कर रहे हैं. देखो, वी आर सॉल्विंग दिस पार्ट और ये जो पार्ट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो मुझे देखो माइनस बाहर रखो और मुझे इस लॉजिक के लिए, ये क्वाड्रेंट वाले कंसेप्ट के लिए मुझे नेगेटिव साइन एक और देना पड़ेगा. Now why are we putting negative sign? ये negative sign बाहर है. ये negative sign किस लिए? This is for the logic in 2. जो नंबर 2 में जो लॉजिक आता है उस लॉजिक को हम फॉलो करें
तो उसके हिसाब से tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मुझे नेगेटिव देना पड़ेगा ना। आई कैन नॉट से दैट इट्स ऑलरेडी देयर है तो इट्स ओके, तो गलत हो गया ना तब तो ये। अब स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है बताओ तो? देखना पड़ता है एन ऑर्डर या इवन है, तो बताओ तो यहाँ पे कौन ऑर्डर या इवन है? सर ऑर्डर Odd. ऑर्डर तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं या सेम रखते हैं tan को? से चेंज Change. करते हैं चेंज करेंगे तो tan चेंज होगी, क्या में बदल जाएगा? साइन Cot. और कॉट में, साइन में नहीं। हाँ मैं गलत बोला, मैंने बोला tan को साइन में बदल दे, नहीं बदल सकते, tan का कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना पड़ेगा। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉट होता है। एंड लास्ट में 30 डिग्री लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30 डिग्री? इट इज √3. √3. Did you get everyone? Okay, so I want everyone to copy down this sum and try the next question, which is number 5. अभी सबको एक क्वेश्चन नंबर नहीं 5 नहीं है, 9 का पहले तुम लोग नंबर 2 ट्राई करो, फिर नंबर 5 ट्राई करो। चलो ये दो सम ट्राई करो, 9 का 2 एंड नंबर 5। ना मैं एक बार इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना एक बार, तुम लोग मिस्टेक बताना मैं मिस्टेक कहां कर रहा हूं, ठीक है? लिसन, 9 का नंबर 2, see I can write this as 9 into 90 plus 60 degree. I can even write, okay ये तो हो गया एक चीज। अब मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूं, देखना एक बार, मैं एक बार मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? तुम लोग मुझे बताना कि गलती कहां पे। सर वहां पे प्लस होगा, पॉजिटिव। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे प्लस होगा, बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, 9 into 90 plus 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है ना, तो मैंने तो सही किया, तो गलती क्या साइन है? को देखना पड़ेगा सर। हम लोग को साइन को देखना पड़ेगा। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट टू आई मीन हियर फ्रॉम यू ऑल। cos को नहीं देखना है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, बहुत तो पता है क्या कर रहा होगा गलती, बहुत तो गलती क्या कर रहा होगा बता रहे हैं। 9 ऑर्डर तो साइन को cos में चेंज कर दी, ठीक है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में तुम लोग को cos 870 डिग्री दिया हुआ है या sin 870 डिग्री दिया हुआ है? sin 870 दिया है ना, क्वेश्चन तो sin 870 का है ना, तो sin 870 सेकंड में लाई कर रहा है, और सेकंड में sin क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये मैं गलती को बार बार में हाईलाइट करने का सोच रहा था, लेकिन क्योंकि सबको एक कंसेप्ट क्लियर है, कहीं ये डाउट नहीं आ रहा था, एंड वो बहुत अच्छा है, मतलब इससे क्लियर है कि सबको एक ये चीज को एकदम अच्छे से समझ गया। क्योंकि ये डाउट आने का मतलब है, ये जो मैं भी कर रहा था ना, बहुत लोग इस तरह से समझते हैं, ऑर्डर तो साइन को cos में बदल दो, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन तुम खुद दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में sin 870 डिग्री है या cos 870? साइन है ना, तो गिवन तो ये है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मुझे पॉजिटिव साइन है। ओके, नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? कैन यू टेल मी? सर 2। सर 2 plus 2 वेरी गुड, सबका आंसर सबको परफेक्टली बता दे रहा है, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कोसेक है -690 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। उसके बाद 6 into 7 into 90 plus 60, 7 into 90 plus 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 7 ऑड है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, so answer is minus sin 60, and what is the answer? It is minus √3. I'm sorry यार, मैं एक चीज गलती कर दिया, पता है गलती क्या की? मैं सर आपने cos लिख दिया। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही मैं cos को सॉल्व कर दिया, ये cosec है, सॉरी मैं गलती से नेक्स्ट स्टेप में cosec को cos बना दिया, I'm sorry। मैं एक बार इससे ये वाला पार्ट फिर से सॉल्व करता हूँ। 7 into 90 plus 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? नेगेटिव। ऑड है तो cosec चेंज हो जाएगा sec में, तो आंसर sec 60 डिग्री है, एंड आंसर इज 2। ठीक है, मैंने गलती क्या किया था, ये गलती से cosec को सिर्फ cos लिख दिया था, तो वो इसके बाद गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट सम, बस एक दो सम और करना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। You all have to do question number 8
and the last sum, that is number 230. ये दो sum बचे। चलो जल्दी से दो sum। So the answer of question number 8 is how much? Tell me once again. So -1/2. minus 1 by And 2. number 13 is how much? -1/2. दोनों का आंसर -1/2। Okay. So fine. So एक बार मैं number 13 solve कर देता हूँ। See, here we find that angle is 4530 degree, where I'm not able to identify that how much into 90 plus how much is equal to 4530. So let us use this division method. I mean, let me divide it by 90. So remainder is 30 degree. So I can write this as 50 into 90 degree plus 30 degree. All right, everyone? Follow this step, everyone. 50 into 90 is 4500 plus 30 degree is 4530. Right? Now 50 वो तरीका वाला घूमने वाला नहीं करेंगे, इतना बार घूमो ऐसे वाला नहीं, ये डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2. 2 plus 1 कितना होता है? 3। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। इवन है तो साइन रहेगा, and the answer is -1. All right, so let us move ahead with everyone wrote down question number 10 now. See, in question number 10, the questions which you find here is same as number 9, but the only difference in 9 and 10 is that in 10 the angles are in radian and in 9 the angles are in degrees. The only difference is this. Today I am not going to explain you something new. I am going to explain you this sum by the same way when we had solved the trigonometric function of an angles in degrees. So हम क्या करेंगे इसमें? डिग्री वाले कंसेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट डे बताएंगे कि रेडियन में लग के कैसे सॉल्व किया जाता है। और नेक्स्ट डे जब मैं बता दूंगा तुम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके नहीं करेंगे। रेडियन में बहुत इजी तरीके से होता है, लेकिन उसके लिए टेक्निक बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखना एक बार पहले 10 का वन। Suppose we have got sine 25 pi by 3. तो tell me अगर मैं 25 pi by 3 को डिग्रीज में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा आंसर? into 180 by pi. 180 by pi में करना सर। मतलब कितना हो जाएगा? 25 pi by 3 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें So 150. 1500 ना? 1500. 1500 डिग्री आ जाए। ठीक है? 1500। अब 1500 डिग्री आ गया, अब सेम तरीके से सॉल्व कर लो n into 90 वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करके। So I can write this as 16 into 90 degree plus 60 degree. All right. I hope it is clear. You know how to convert any angle given in radian into degree. We multiply 180 by pi, so it gets converted. It gets expressed in what? Degree. ये डिग्री more than 90 है तो इसको हम n into 90 plus 60 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 16 into 90. अब हम क्वाड्रेंट को चेक करेंगे। 16 into 90 plus 60 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सर वो 25 into 180 क्यों नहीं कर रहा, जैसे हमने उस टाइम पाई को 180 दिया था? ठीक है वही चीज है, बट ठीक है 180 by पाई से मल्टीप्लाई करके वही चीज आ रहा है, पाई पाई कैंसिल होगी, बात तो बराबर नहीं। ठीक है। Now, so we find that this is which quadrant? It is first quadrant. First quadrant में sin function, first quadrant में sin क्या होता है? Positive. Positive. Even है तो sin, the answer is √3/2. So what we are finding कि अगर हम रेडियन में वाला तरीका ना भी आज बता रहे हैं तो भी हम सॉल्व तो हो ही जाए, पर थोड़ा टाइम लगेगा। पहले डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद n into 90 में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ये सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट डे हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, आज ये तरीके से करो। तो एक बार सबको पहले एक सम खाली करो आज, बस एक सम इस वाला का। क्वेश्चन नंबर 7, एवरीवन डू 10 का नंबर 7, बस एक सम। उसके बाद हम लोग 11 और 12 करेंगे। ओके, एवरीवन डू 10 का नंबर 7। So I'd ask you all to do sum number 10 plus 7.
तो 10 का क्वेश्चन नंबर 7 में सम है tan 5 pi by 4. So if you express 5 pi by 4 in degree, it is equal to 200 and how much? 25. 425 degree. Which I can write it this as 2 into 90 plus 45. Right? 2 into 90 plus 45 means which quadrant? Third quadrant. Third quadrant में tan क्या होते हैं? Positive. Even है तो tan. The answer is 1. सबका आंसर कम? Yes, sir. अब देखो, सुनो सर. Now, I'm 100% sure that 100% students attending the class will be able to do this sum over left. What you have to do in this sum? Listen here carefully. I think you can see here screen पे दिख रहा है question. अब ध्यान देना. यहाँ पे देखो question क्या है? Evaluate. Sorry, क्या लिखा है? Find the value of. तो find the value of what? Find the value of sin 750 into cos 300 plus cos 1470 degree into sin minus 1020. मतलब तुम लोग अपने अपने पीडीएफ पे रेफर करना और तुमको क्या करना है, ये सारा का अलग अलग वैल्यूज निकाल के अलग अलग और यहाँ पे पुट करके इसका जो आंसर आ रहा है, मतलब इवैल्यूएट करके जो आंसर आएगा वो मुझे बताना है. तो आई एम गिविंग यू 4 minutes टाइम, 4 to 5 minutes टाइम, एंड आई वांट ईच एंड एवरीवन आराम से, जल्दीबाजी नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जल्दीबाजी करोगे रॉन्ग होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा. आराम से करो, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, फर्स्ट सेकंड कोई मतलब नहीं, आराम से करो. मतलब अभी तक हम लोग अलग अलग कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारा चीज एक साथ है, तो सबका अलग अलग वैल्यूज निकाल के और सॉल्व करो. So everyone wrote down. Let's just discuss this up. So can you tell me, like solving this sin 750 degree, what you are getting? Tell me. 1 by 2. So 1 by 2. Very So good. 1 by 2. Then solving cos 300 degree also you got 1 by 2, right? 1 by 2. 1 by 2 sir. मिला. Yes, sir. Cos 1470 को सॉल्व करके क्या मिला? So root 3 by 2. 3 by 2. 3 by एकदम 2. करेक्ट है. और लास्ट में sin of minus 1020 को सॉल्व करके रूट 3 by 2 आया होगा. Root 3 by 2. अल्टीमेटली फाइनल Minus फाइनल root आंसर 3 by 2. नहीं, फाइनल में बात कर रहा हूँ. तुम देखो कॉपी में प्लस 3 by 2 आया और उसको पूरा को सॉल्व करके आंसर क्या होगा? 1 है. 1. ऑलराइट. Sir, minus 1 by 2. नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन ऑफ minus 1020 को सॉल्व करके मैं बोल रहा हूँ. फाइनल आंसर तो रूट 3 by 2 ही आएगा. पहले नेगेटिव आया होगा, Yes, sir. पहले ये नेगेटिव, पहले ये ऐसा आया होगा और फिर जब इसको सॉल्व किया होगा तो आंसर आया होगा माइनस रूट 3 by 2. तो माइनस माइनस प्लस. मैं ये बोल रहा हूँ, चेक कर लेना एक बार, ठीक है. नाउ लिसन हियर एवरीवन. सो दिस वाज क्वाइट सिंपल सम, ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब अगर मैं तुमको ये बोलूं कि सॉल्व cos sin 750, अलग से बोलूं सॉल्व cos 300 डिग्री, अलग से बोलूं ये सॉल्व करने के लिए और ये सॉल्व करने के लिए, सबको सिंपलीफाई करने के लिए बोल दो इस एक्सप्रेशन में डाल के, तो वही करना था यहाँ पे. ऑलराइट एवरीवन. सो विद दिस एवरीवन नोट डाउन दैट तुम लोग का होमवर्क होगा एवरीथिंग टिल नंबर 12, ठीक है. 9 10 11 12, 9 का सारा, 10 का सारा, 11 का सारा, 12 आई मीन 11 नहीं किया, 12 नहीं किया, कंप्लीट करके submit today only. Please make sure that you all don't submit just before your tuition starts, just on the day when you have got tuition. Like next tuition is, you know, when you have next tuition, so I don't want anyone to send homework on that day. I want everyone to send today only, today itself. This is what I expect from you all. Excuse me, sir. Okay, so here I'm ending today's class.